تقریب کے آغاز کرتے ہوئے جناب چودھری عبدالقیوم صاحب سے التماس کروں گا وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت احدهما یا آبت استاجرہ وخیر من استاجرت القوی الامین۔ ترجمہ: حضرت شعیب کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنی بکریوں بھیڑوں وغیرہ کے لیے منتخب کر لیں کہ جس آدمی کو کسی چیز کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہوں، القوی الامین، کہ وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ایماندار بھی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اب میرٹ پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی صلاحیت اور اس کے لیے ایمانداری، اس کا کریکٹر، اس لحاظ سے یہ دو چیزیں ہیں جو کہ دین کی روح سے ہیں کہ یہ دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک عرصہ سے ہماری جو بار کی سیاست ہے وہ ایک جو ہے وہ سٹیٹس کو کا شکار ہے۔ تو کچھ ہمارے دوست ہیں، ہم نہ کسی کا نام لیں گے اور نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، نہ ہمارا یہ شیوا ہے اور نہ یہ کچھ ہماری روایات میں شامل ہے۔ تو ایک عرصہ سے بار ایک یرغمال بنی ہوئی ہے، کچھ دوست جو ہے اس پر قابض ہیں، کبھی وہ ہیں کبھی وہ ہیں، اور عرصہ سے اس بار کی خاطر کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یہ پاکستان یا پنجاب کے ریچسٹ بار ہے، اس کا جو ریونیو ہے نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہے، اور عرصہ مجھے 36 سال پریکٹس کو ہونے والے ہیں، تو ہر سال ہم یہی سنتے ہیں کہ اب جو ہے اس سال جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے، ہماری کوشش جاری ہے، جو یہ قانونی مل جائے گی ہمیں وکلا کو، اور ان لاروں میں جو ہے ایک سال گزر جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، وہ پھر شروع یہی کرتے ہیں جب انتظامیہ والوں کو بلایا جاتا ہے جج صاحبان کو، تو ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن سے ہمارا دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ نہ آج تک کسی نے یہ پرسو کیا ہے کہ وہ آنریبل ہائی کورٹ میں پرسو کریں اپنے معاملات کو، یہ وکلا کالونی ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے جو مسٹیک ہیں ہمارے بنے ہیں، ابھی مظفر گڑھ سے لیا علیحدہ ہوا تو لیا کو جا کے دیکھ کے اس کا جوڈیشل کمپلیکس، اور ادھر ہی ہماری تحصیل جو کوئی ابھی بنی ہے تو ہم سے کئی درجے وہ اچھے جا رہے ہیں، اچھی ان کی لوکیشن ہے اور وہ بہتر ہے، احتساب لائق ہوا۔ تو پھر ہم نے ایک ترتیب دیا، تو اس کا ہم نے جو ممبران بنائے ان ممبران سے ہم نے ووٹنگ کرائی، اور ووٹنگ کے بارے میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے فیاض صاحب کو پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا، اور جناب خیر محمد صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ بنے، وزیر احمد خان چانڈیا صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، اور مجھے ناچیز کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ تو میرے کیا ہمارے تو یہ رائے یہی ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں جو سٹینڈ ہوئے ہیں ان سے بہتر امیدوار ہیں ہمارے نیت جان، ہم ان کو آپ سے یہی التماس کرتے ہیں، تمام دوستوں سے ہمارا ساتھ دیں کہ سٹیٹس کو فاضل عدالتوں نے تو سی پی سی میں بھی ترمیم ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلتا سٹے، یہاں تو 20 سال 30 سال سے سٹے چل رہا ہے۔ ایک ہی پارٹی ہے جو جہاں اس پر قابض ہے۔ اچھا، تو یہ تھوڑی سی میں نے باتیں عرض کی ہیں، اس کے بعد میں پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے محترم دوست قریشی صاحب ہیں اور بھی دوست ہیں، تو میں جناب افتخار قریشی صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں
آج محترم جناب میاں فیاض حسین فیاض صاحب کی دعوت پر ان کے اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ محترم میاں فیاض حسین فیاض صاحب احتساب طائب فورم کی طرف سے صدارت کے امیدوار نامزد ہو کر سامنے آئے تو ہم نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ کل ہی اس پروگرام کا پتہ چلا شام کے وقت، تو بہت سارے دوست جو آج یہاں پہ غیر حاضر ہیں ان کو اطلاع نہیں ہو سکی، اور کافی دوست جن کے ساتھ ہماری مشاورت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی آج یہاں نہیں آ سکے، تو انشاءاللہ تعالی وہ سب میاں فیاض حسین فیاض صاحب کے ہم سفر ہوں گے اور ان کو کامیاب کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ابھی میرے دوست جناب عاشق حسین چند صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ جو گزشتہ ادوار میں بالخصوص گزشتہ سال میں، کیونکہ ہم بھی ان کے انتخاب میں سب دوستوں کا کردار ہے، جب کوئی ساتھی ہمارا وکلا برادری سے منتخب ہو کر آ جاتا ہے تو وہ پھر کسی گروپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری بار کا صدر ہوتا ہے، پوری بار کا جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، اور دیگر تمام عہدوں پر وہ متمکن ہو جاتے ہیں، وہ پوری بار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے قول و فعل سے پوری بار کا امیج ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ امیج لوگوں کے، عوام الناس کے، اور جو مخصوص طبقہ ہے، جوڈیشری کا ہے، انتظامیہ کا ہے، ان کے ذہنوں پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو گزشتہ، خاص طور پہ گزشتہ سال میں جو ایک امیج ڈیولپ ہوا وہ انتہائی، وہ سنجیدہ وکلا برادری کے لیے انتہائی ناقابل برداشت رہا ہے۔ جن انتظامی افسران کے خلاف گالم گلوچ کی گئی، وکلا کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا، بلا وجہ کی ہڑتال کی گئی، تو اس سے جو نقصان ہوا اس کا تو اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ لیکن باعث شرم اس وقت ہو گیا کہ جب انہی انتظامی افسران کے ساتھ انہی کو گالیاں دینے والے ہمارے نمائندگان انہی کے ساتھ بیٹھنے پہ مجبور ہوئے، اس میں کسی جنرل باڈی کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس طرح سے وکلا برادری کے جو اجتماعی وقار کو نقصان پہنچایا گیا وہ بھی ناقابل تلافی نقصان۔ دوستو، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے دوستوں کے ہاتھ میں ہم اپنی قیادت دیں جو ایسا امیج کریٹ کرے کہ لوگ دل سے احترام کریں وکلا برادری کا، اور ایسے سنجیدہ میاں حسین فیاض صاحب جیسے دوستوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم میاں فیاض حسین کے ساتھ ہیں، کہ میاں فیاض حسین فیاض اس قابل ہے، اور اس موجودہ امیدواروں کے اندر ہم نے ان کو اس قدر بہتر سمجھا ہے کہ یہ قیادت کا اہل ہے، اور امید کرتے ہیں اس سے میاں فیاض حسین فیاض کہ اگر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ڈسٹرکٹ بار مظفر گڑھ کی طرف سے، تو یہ جو غیر سنجیدہ رویے ہیں جن میں وکلا کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا، وکلا کے وقار کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی اطلافی کر سکیں گے۔ پہوڑ صاحب ہیں، تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے شروع سے جو ہمارے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، بشیر عثمانی صاحب ہیں، اور بھی لوگ دوست ہیں۔ تو میں اس چیز کے بعد کے اور بھی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، میں جناب محترم بزرگ، تو میں گزارش کروں گا سردار وزیر احمد کنچانڈیا صاحب سے
कोई बात नहीं, हाजिरी हो जाए, 2-4 लाख है। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने हम अपना मुकदमा पेश करते हैं और आपसे गुजारिश होगी कि आप फैसला करें कि हमारा उम्मीदवार मियां फयाद हुसैन फयाद बाकी उम्मीदवारों से कितना बेहतर है। मेरे दोस्तों, एक अरसा से हमारी बार में एक रिवायत चली आ रही है कि जिन लोगों को हम अपने वोट से मुंतखब करते हैं वो मुंतखब होकर बार का इज्तिमाई मफाद बढ़ाने की बजाय अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस बढ़ाते हैं और इस ज़ाती तशख़्ख़ुस को बढ़ाते बढ़ाते पूरी बार का जो इमेज है वो ख़त्म कर देते हैं। दूसरा, आप समझते हैं कि ये बार का फोरम इज्तिमाई फोरम है और हमारे जो नुमाइंदे हमसे मुंतखब हो जाते हैं वो हमारे इस फोरम के सामने जवाब दे हैं, क्योंकि हमने उन्हें मुंतखब किया है इसलिए वो हमारे सामने जवाब दे हैं। लेकिन रीत ये चली जा रही है कि हमारे ये दोस्त जब मुंतखब होकर अपने ओहदों पे विराजमान हो जाते हैं तो किसी को खातिर में नहीं लाते। चुनाचे ये रीत अच्छी रीत नहीं है और कानून के भी खिलाफ है। वो अपनी मर्जी से जिस वक्त चाहे हड़ताल करा देते हैं और जिस वक्त चाहे वो हड़ताल खत्म करा देते हैं। ना तो वो अपनी एग्जीक्यूटिव को मुशावरत में शामिल करते हैं और ना ही कभी उन्होंने जनरल बॉडी का इजलास बुलाया है। तो इन सारे हालात को देखकर हमने सीनियर्स ने और जूनियर्स ने लायर फोरम का इंतखाब किया है। ये लायर फोरम जो भी आपके सामने खड़ा है, इस एहतसाब लायर फोरम ने अपना एक नुमाइंदा मुंतखब किया है प्रेसिडेंट के लिए। अब वो आपके सामने थोड़ी देर बाद आएगा। उन्होंने अपना मंशूर भी बना रखा है जो अभी थोड़ी देर बाद वो अपना मंशूर भी पेश करेंगे और आपसे इस्तदा है कि आप प्रोफेशनल वकला को वोट देने की बजाय ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो प्रैक्टिसिंग लायर हो और जो आपकी मुश्किलात को अच्छी तरह समझता हो। बड़ी मेहरबानी। तो ये तशरीफ लाते हैं जनाब मलिक खैर महफूज साहब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं एक एहतसाब फोरम का एक आम सा मेंबर हूँ। ना मैं इनको कोई गाइड कर रहा हूँ बल्कि मुझसे ज़्यादा सीनियर ज़्यादा साहिब इल्म व दानिश हज़रात मौजूद हैं। मैं तो बार के इलेक्शन में बहुत नौबारद आदमी हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप सब हज़रात से। जिस तरह आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक अच्छी क़यादत मुंतखब होकर आए जो वकला की बेहतरी के लिए काम करे, जो बार की इज़्ज़त व तकरीम के लिए काम करे, जो वकला की बहबूद के लिए काम करे, जो इंतहाई ईमानदारी और शफाफियत के साथ काम करे। इस मिशन में मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। हमारे ग्रुप ने एक तंजीम की बुनियाद रखी है और जिसका बुनियादी मकसद किसी की मुखालफत नहीं है बल्कि उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने वकला की बेहतरी के लिए काम करें, सीनियर और जूनियर को साथ लेके चलें, अच्छी रिवायात कायम करें और हमारा खसूसन जो हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स है, वकला कानूनी है और हमारे वकला की जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम काम करें। तो हम एक मुस्बित प्रोग्राम लेके आए, किसी की मुखालफत में नहीं। हम एक अपना प्रोग्राम ऐसा लेके आए जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारी अच्छी रिवायात कायम हो, हमारे वकला को अच्छा माहौल उनको मुयस्सर आए और बार और बेंच की जो तल्लुकात हैं वो बेहतर हो। तो इस मंशूर को सामने रखते हुए हमने मियां साहब को अपनी तरफ से उम्मीदवार नामजद किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ इफ्तिखार कुरैशी साहब का और दीगर हमारे ग्रुप के जो सीनियर कायदीन हैं तो उन्होंने हमारे साथ ताउन का ऐलान किया है, बल्कि हमारी सरपरस्ती की है, हमारी रहनुमाई की है और उनकी मौजूदगी में हमें बड़ा इत्मीनान और बड़ी हमारी हौसला अफजाई हुई।
तो मैं समझता हूँ जिस तरह वज़ीर खान साहब कर रहे थे बात आपसे कि हमारे कैंडिडेट इस फील्ड में पहली दफ़ा आए हैं और उनका एक माजी भी बहुत अच्छा है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टिग्मा नहीं है, उनके किरदार के ऊपर किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं है, और हम पर उम्मीद है कि वो हमारे इस ग्रुप के मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह मुंतखब होकर आप सब हजरात की बेहतरी के लिए और बार की इज्जत और तकरीम के लिए काम करेंगे। मैं जनाब मियाँ फयाज साहब जो हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और एहतसाब फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे इल्तमास करूँगा कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने जो मैनिफेस्टो है उनका उसके मुतालिक भी हमें आगाह होना। मैं आने वाले तमाम वकला साहबान का और अपने एहतसाब लहर फोरम के सरपरस्त आला चेयरमैन, सरपरस्त आला का चेयरमैन का, प्रधान का, जनरल सेक्रेटरी का, सारे दोस्तों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे सेक्रेटरी साहब मलिक काशिफ चंद साहब ने गुजारिशात की हैं और हमारे चेयरमैन वज़ीर खान चांडिया साहब ने अपनी किताब में बताया और मलिक खैर मोहम्मद ने तफसीलन बात की, तो मैं उनकी बातों को आगे कंटिन्यू रखते बताता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने इज्जत दी और हम कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह हम अपने मंशूर के मुताबिक इस बार की साबका रिवायात को बहाल रखेंगे। बार और बेंच के ताल्लुकात इंशाअल्लाह आज से 20 साल पहले जैसे थे उसी तरह होंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इंतजामिया हो, सबके साथ इंशाअल्लाह बार सुपरसीड करते हुए अपने तमाम जूनियर वकला के मसाइल को हल कराने में पेश रहेंगे हम, और इंशाअल्लाह सीनियर को साथ लेकर ही हम चलेंगे। मेरे दोस्तों, आप काफी अरसा से देख रहे हैं ये बारियां जो ऊपर नीचे आ रही हैं, तो उससे हमारी बार का इमेज जो पंजाब में सबसे सरफरेज था, आज हमारी बार का नाम लेने वाला कोई नहीं है। पहले हमारी ये रिवायात थी, कोई भी मसला हल होता था तो प्रेसिडेंट, हमारी इंतजामिया वो फौरी तौर पर जनरल बॉडी का इजलास बुलाती, जनरल बॉडी के इजलास में एजेंडा तय होता, जिस जूनियर या सीनियर के साथ कोई ज्यादती होती उस अफसर को यहाँ बुलाया जाता और बाकायदा उस हमारे वकील को अकेला नहीं छोड़ा जाता बल्कि पूरी बार उसके साथ खड़ी होती थी और उसका इजाला होता था। आज आप देख रहे हैं कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं कि हमारे डीसी का तबादला हुआ तो उसको वेलकम करने के लिए तो जो आते हैं आ जाते हैं, जाने के लिए नहीं बुलाया गया। सेशन जज का तबादला हुआ तो आने के लिए चाय का कप दे दिया, जाने के लिए कोई बात नहीं है। टीपीओ के साथ हुआ तो इस तरह रवायात हो रही है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हमारी बार के जो है उनके साथ ताल्लुकात 0/0 हो गए हैं। हमारे वकला की आज जो कोर्ट्स में या इंतजामिया के साथ रेवेन्यू में हमारी इंसल्ट होती है, उससे हमारे जो है सर शर्म से झुक जाते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि दोस्तों, आप अपने वकार को, अपनी इज्जत को बहाल कराने के लिए हमारा साथ दें। हमारे ऊपर कोई धब्बा नहीं है, हमारा माजी गवाह है और जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी बार से चैलेंज है कि कोई ये बता दे कि कभी इन्होंने ओहदे को इस्तेमाल किया हो, कोई ओहदेदार बता दे कि आज तक इसने आकर हमें काम बताया है। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। हमारी किसी इनफरादी शख्सियत से कोई मुकाबलेबाजी नहीं है। हमारी किसी सदर से, जो साबका सदर आए हैं, जो अब हैं, उनसे कोई मुखालफत नहीं है। हमारे वो भाई हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने बार के इंतजामात को चलाने के लिए जो यहाँ पर अनरेगुलराइजेशन बात हो रही है, गैर इलीगल काम हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एहतसाब लहर फोरम के फोरम से आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे भाइयों हमें हिसाब दो।
हमने ये एप्लीकेशन दी उनको, सदर को जाके उनको ये कहा कि 2016 जनवरी से लेकर आज तक आप बताएं आपके असासदात क्या हैं, इनका मामनी क्या है, इनका मामनी क्या है और कहाँ खर्च के बकाया जात क्या हैं। आज तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। यहाँ पर एक जूते पॉलिश करने वाली मशीन आ गई, ऊपर से लैट्रीनें बन रही, कौन जाएगा? ये कम अज कम ये तो हम आप बता दें कि लाइब्रेरी की बुक्स क्यों नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप सब लोग जानते हैं जो प्रैक्टिशनर लायर हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरिट को देखें, आप ऐसे बंदे को ले आए कम अज कम प्रेसिडेंट के लिए जो आपकी इज्जत वकार को बहाल कर सके, जो बार और बेंच के ताल्लुकात अच्छे कर सके, जो हमारे जूनियर वोकला जिनके पास बग्गा शहर से यहाँ आने के लिए उनके पास रक्षक का किराया नहीं है। सीनियर्स को हमने कहा है कि उनके बारे में सोचो, उनको 3 साल, जब नया वकील आता है तो 3 साल के लिए सोर्स ऑफ इनकम का वे दो। आप खुद जाएं, आर्गूमेंट करें, फीस उसको दिलवाएं, आप बेल में खुद पेश हुए और फीस अपने जूनियर को दिलवाएं ताकि 3 साल तक उसके हालात बेहतर हो सके। और एक जूनियर जिसको पीछे मुफाद परस्त लोग जाके कहते हैं कि जज से जाकर लड़ो, पुलिस से लड़ो और पीछे अपने मुफाद हासिल करते हैं और उसका फ्यूचर तबाह कर देते हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं। हम कहते हैं जो नया जूनियर आ रहा है हम उसको अच्छा वकील बनाएं, हम उसके अच्छे किरदार कैरेक्टर के बालक बनाएं और अच्छा जज बनाएं। हमारी ये सेवा है, हमारी ये कोशिश है। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरिट पर ही देखकर फैसला करेंगे और बाहर की रिवायात साबका बहाल कराने के लिए हमारा साथ देंगे। इसके अलावा अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वोकला कॉलोनी है, बाकी जनाब जो है ना कोटोदू से सुना है हो गई है, उकाड़ा में हो गई है, गैया में हो गई है, तो हमारी क्यों नहीं होती। और हमारी बदबख्ती ये देखें कि हमें हमारी बार को पंजाब बार कौंसिल में बहुत अहम सीट मिली, उसके बावजूद भी हमें जनाब लोग कॉलोनी नहीं मिली, चैम्बरों का मसला हल नहीं हुआ। तो इन जूनियर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी बार क्या कर रही है। तो मेरी यही इल्तिजा है आप दोस्तों से कि आप लोग हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें और हमें पावर करें और इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हर जूनियर और सीनियर की जो ख्वाहिश होगी वही बार में होगा, वही बेंच के साथ ताल्लुकात होंगे, वही रेवेन्यू, वही इंतजामिया के साथ होंगे। हम किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, हम किसी के साथ के मुकाबलेबाजी पे नहीं आते, लेकिन अपना हक मांगने के लिए अपनी बात करेंगे, हर वक्त करेंगे और अपने मंशूर को इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है हमारे साथ फोरम अपने मंशूर को कंटिन्यू रखेगा। और ये बात भी एक मेरे दोस्त ने कही कि आप जितने ग्रुप हैं उनसे पूछें कि आपका क्या मंशूर है। आप बार बार इलेक्शन में आते हैं, आपका क्या मंशूर है, आप क्या चाहते हैं। कोई एक पार्टी, कोई एक ग्रुप ये बता दे ये हमारा मंशूर है, फिर हमें बताएं। कोई उनका मंशूर नहीं, ये लुट्टो और फुट्टो वाला मंशूर हमें नहीं चाहिए। लिहाजा मैं एक दफा फिर मैं सारे दोस्तों से आए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि वो तशरीफ लाए हैं। वेलकम उनको करता हूँ और नेक तमन्नाओं के साथ आप सबको मशकूर। थैंक यू। हमारे लिए तस्वीर का बात करेंगे आप सब लोग और इंशाअल्लाह हमारे